Okay, so welcome all of you. So I'm an economics teacher. We're going to learn about the subject economics, right? So first of all, it is just like I could not. This is just not a new subject to you. You people must have studied in ninth and 10th standard. So you people must be aware of this term economics basically. Like what is economics, right? So today, like in this class, we're going to learn like what is economics and what is economy and what are the economic activities. See, just हमें पूरे साल भर like for the entire year we have to study this subject. So we should be aware of the term economics. हमें पता होना चाहिए कि subject है क्या, economics है क्या, हमें पूरे साल भर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो आज मैं आपको यही बताऊंगी. Like today we are going to learn about this term economics and the sub other terms also. So yes, what is this economics? Economics is basically, like you could say, it is just a subject matter which helps to solve the economic problems. So what is economics? Economics is basically a subject matter which helps us to solve the economic problem. Now question arises here, what is this economic problem? Right? So economic problem, like what is the economic problem? Which economic problem we are facing in the country? So see, the economic problem is, first economic problem is resources are limited, number one. Number two, wants are unlimited. And number three, resources have alternative uses. Right? Now we're going to study, we're going to understand this concept through an example with the help of an example. Right? I'll be telling you, I'll be teaching you this whole concept with the help of an example. So alright, let's just talk about Mr. X. हम एक इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिविजुअल लेवल पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या. समझो मिस्टर एक्स है, ठीक है. मिस्टर एक्स के पास, लाइक मिस्टर एक्स हैज ₹1000 इन हिज पॉकेट. अब मिस्टर एक्स के पास में कितने रुपए हैं? 1000 रुपये उसकी पॉकेट के अंदर, ठीक है. नाउ मिस्टर एक्स हैज वेराइटी ऑफ options to spend this 1000 rupees. ठीक है, ये 1000 रुपया खर्च करने के लिए वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है किसके पास में? मिस्टर एक्स के पास. सपोज, ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स के पास में क्या अवेलेबल है? मिस्टर एक्स को क्या करना है? मिस्टर एक्स हैज टू बाय अ बुक कॉस्टिंग ₹200. ठीक है, मिस्टर एक्स हैज टू गेट हिज पेट्रोल टैंक फुल वर्थ ₹500. मिस्टर एक्स को और क्या करना है? मिस्टर एक्स हैज टू गिव हिज बर्थडे पार्टी जिसका एस्टिमेशन उन्होंने कितना लगाया है? 500. मिस्टर एक्स के अदर एक्सपेंसेस हैं 300. नाउ सी, सबसे पहले तो हमें समझ रहे हैं 1000 मेरे लिए क्या है, मतलब 1000 मिस्टर एक्स के लिए क्या है. तो ये 1000 रुपीज़ मिस्टर एक्स के लिए क्या है? मिस्टर एक्स के लिए इनकम है, मिस्टर एक्स के रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज में क्यों बोल सकती हूँ? रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर सेटिस्फैक्शन दे रही है, ठीक है, किसी को यूटिलिटी दे रही है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? रिसोर्सेज हो जाते हैं.
For example, this chalk is my resource. Why? Because this is giving me the satisfaction. This is helping me to achieve the utility. This is helping me to achieve the satisfaction. कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा के मुझे satisfaction मिल रहा है. Like this board could be my resource. Why? Because this is just giving me the utility. This is just giving me the satisfaction. Right? तो 1,000 रुपया क्या करेगा? 1,000 रुपया मिस्टर एक्स की नीड्स को फुलफिल करेगा, मिस्टर एक्स को यूटिलिटी देगा. तो वो मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गया? मिस्टर एक्स के लिए रिसोर्सेज हो गए. राइट. जब मिस्टर एक्स के लिए रिसोर्सेज हो गए तो आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज देखो 1,000 रुपीज इन हिज पॉकेट, 1,000 रुपया है. 1,000 रुपये से ज़्यादा के खर्चे मिस्टर एक्स को करने हैं. ठीक है. 200, 500, 500, 300. इफ आई बी एडिंग, इफ आई बी समिंग अप, सो द सम इज 1,500. Right, the sum is 1,500. So it just happens in the economy. What it just happens in the economy? Like see, we all have limited resources और वो limited resources का utility, ठीक है, limited resources का अगर मैं पूछूँ, अगर मैं बताऊँ आपको limited resources का usage अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूसेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है. आपकी वांट्स, ह्यूमन वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है. मुझे बुगाटी चाहिए, इफ सपोज इफ आई एम हैविंग i10 तो मुझे क्रेटा चाहिए. इफ आई एम हैविंग क्रेटा तो मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए. इफ आई एम हैविंग फॉर्च्यूनर सो आई विल बी विशिंग टू हैव ऑडी. इफ आई एम हैविंग ऑडी आई विल बी विशिंग टू हैव बुगाटी. So my wishes, goes on and goes on. So like the human wants, human wishes, human desires are never ending. कभी भी मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं. अनलिमिटेड चीज़ है बेसिकली. ठीक है. ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है. तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. लाइक दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. लाइक हाउ टू एडजस्ट ₹1,000 इन टर्म्स ऑफ ₹1,500 के एक्सपेंसेस. लाइक मेरे पास में 1,000 रुपया है एंड आई हैव द एक्सपेंसेस ऑफ 1,500. सो हाउ आई बी एडजस्टिंग द 1,000 रुपीज इन टर्म्स ऑफ 1,500. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल द इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. लाइक माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, my wants are unlimited. 1,000 is resources which is limited. 1,500 is the expenses which is unlimited. इससे भी ज़्यादा, might be इससे भी ज़्यादा expenses और हो सकते हैं किसके? मिस्टर एक्स. राइट. ये हो सकते हैं मिस्टर एक्स के expenses. तो अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है. यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ठीक है. और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस. 1,000 रुपया को आप क्या क्या खर्च कर सकते हो? माइट बी यू कैन बाय you can buy a chocolate, you can go for the party, you can go to any cafe, you can purchase a book. Like variety of options I am having, variety like resources and alternative uses. अलग अलग तरीके के uses हैं मेरे पास में. सो ये मेरे पास में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि 1,000 रुपया है, 1,500 रुपये कैसे अपोर्शन करूँ, कैसे खर्च करूँ, क्या करूँ जिससे मुझे क्या मिले, जिससे एक पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. चाहे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी भी टर्म्स में हो, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग. सो व्हाट डज इकोनॉमिक्स डू हियर? सो इकोनॉमिक्स बेसिकली helps us to rationally manage this limited resources in terms of unlimited wants so that we could have the maximum satisfaction either at the micro level or at the macro level. अब आप इस लैंग्वेज को समझे. रिसोर्स लाइक इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? ये 1,000 रुपया जो मेरे पास में लिमिटेड है, अब मुझे अपने रिसोर्सेस को रेशनली मैनेज करना है. रेशनली मैनेज कैसे करना है? 1,000 रुपया आई बी चेकिंग आउट कि मुझे बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरी प्रायोरिटी में बुक है 200 की, तो मुझे क्या खरीदना है? मुझे बुक तो खरीदनी है. उसके बाद में पेट्रोल टैंक मैं बोलती हूँ कि आई नॉट बी गेटिंग इट फिल ऑफ ₹500. मैंने सोचा लॉकडाउन में मैं इतना ज़्यादा आई नॉट गोइंग आउट, तो मैंने क्या किया? मैंने 500 रुपये का टैंक फुल नहीं करा के मैंने कितने का पेट्रोल टैंक फुल कराया? मैंने पेट्रोल टैंक फुल करा दिया 300 रुपये का. उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे बर्थडे पार्टी देनी है. मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया? मैंने 300 अपोर्शन किए फॉर माई बर्थडे पार्टी. ठीक है. रेस्ट व्हाट आई डिड, रेस्ट मैंने बोला आई हैव फॉर अदर एक्सपेंसेस आई केप्ट ₹200.
तो मैंने जब सम टोटल लगाया तो आई गॉट टू नो कि मेरे पास में कितना है 1000 रुपीज़। मेरे पास में जो रिसोर्सेज थे उसको मैंने पूरी तरीके से क्या कर लिया, अपोर्शन कर लिया। इट हैपेंस बेसिकली लाइक सी ये दिस लाइक दिस इस तरीके से, इफ आई एम डूइंग सो दिस इज गिविंग मी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। माइट भी आपको कुछ और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, किसी और तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कैसे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, माइट भी किसी और पर्सन बोलता है कि मुझे बर्थडे पार्टी देनी ही है, तो नहीं देगा, क्या करेगा, 200 रुपये करेगा, 500 रुपये करेगा, 300 रुपये करेगा, तो 1000 रुपये उसका पूरा हो गया। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिल रहा है और आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। So this is my economics. So economics is the study of rational management of limited resources in terms of unlimited wants. यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज 1000 रुपये को 1500 रुपये में इस तरीके से खर्च किया कि मुझे क्या मिला, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल दी इकोनॉमिक्स। ये चीज़ हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आई हैव टॉट यू व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो वो मेरे पास में वो मेरी क्या होती है, वो मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। ये भी मैंने कर लिया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी बता दिया। अब एक टर्म आता है, लाइक हम बहुत वेरी इन कॉमन वे में एक कॉमन लाइफ में हम इस टर्म को बार बार यूज़ करते हैं, इकॉनमी। आई से लाइक यूएसए की इकॉनमी इज़ बेटर देन द इंडियाज़ इकॉनमी। आई से लाइक राजस्थान की इकॉनमी इज़ फार बेटर देन बिहार इकॉनमी। आई से केरला's economy is better than Rajasthan's economy. So what is this term economy refers here? तो अब हम ये समझते हैं कि इकॉनमी होता क्या है। बेसिकली हम इस बारे में बात करेंगे